Good morning, friends. Today we are going to continue with the first unit of Sale of Goods Act 1930. Today the topic of study is the fixation of price in a contract of sale of goods. We have seen that price is a most important element in the case of a contract of sale. Price, that is a monetary consideration, and how this monetary consideration will be fixed in the case of a contract of sale, that we are going to refer today. But before moving further, we'll revise just what we have studied in the previous lecture. In the previous lecture, we have studied about difference between sale and hire purchase. I told you that in the case of a hire purchase, the ownership cannot be transferred immediately because the entire amount is received in installment. So in the case of a hire purchase, the ownership will be transferred only on the payment of last installment, whereas in the case of a sale, the ownership will be transferred immediately from the seller to the buyer. In the case of hire purchase, if a buyer does not pay the future installment, the seller is entitled to take back the goods, whereas in the case of a sale, the seller is not entitled to take back the goods from the buyer. If buyer refuses to pay the price, he has a right to file a suit against the buyer for recovery of the price, so he cannot take back the goods in the case of a sale. Whereas in the case of a hire purchase, seller will be entitled to take back the goods. Further, if buyer does not like the goods in the case of a sale, he cannot return the goods. However, in the case of a hire purchase, if the buyer does not like the goods, he will refuse to pay the future installment and the seller will take back the goods. So these were the difference between the sale and hire purchase. Then we have seen the difference between sale and bailment. Bailment, there are two parties, one is a bailer and one is a bailee. In case of a bailment, bailer will provide goods to the bailee for a specific purpose, and as soon as the purpose is over, the goods will be returned by the bailee to the bailer. He simply transfers the physical possession of the goods. He does not transfer the ownership, whereas in the case of a sale, the ownership is transferred from the seller to the buyer. Bailment are of two types, gratuitous and non-gratuitous. Gratuitous, where a consideration is not involved, whereas in the case of a non-gratuitous bailment, consideration is involved. Gratuitous bailment is also an exception to the rule, no consideration, no contract. So these were the difference between bailment and sale. Then there is a barter and exchange. Barter system is goods for goods is a barter system. Exchange is where you exchange certain things, like a part of the goods are exchanged for goods and balance amount is paid in monetary terms, that can be called as an exchange. Then there is a sale and contract for work and labor. In case of a sale, goods is a subject matter, whereas in the case of a contract for work and labor, service is a subject matter. So in the case of a contract for work and labor, though the goods will be a part of the contract, but goods will not be a subject matter. It will only be a supporting part in the case of a contract for work and labor. I have given you the example of painting or an artist. Then in case of, we have seen destruction of the goods. If the goods are destroyed before the contract of sale, the contract will become void and the risk will fall on the seller. Similarly, is the case with the agreement to sale. Whereas in the case of a sale, if the goods are destroyed, the risk will fall on the buyer, because in the case of a contract of sale, the ownership will be transferred to the buyer, and hence if subsequently if the goods are destroyed, the risk will fall on the buyer and not the seller. Then we have seen that subject matter of contract of sale will always be a goods. Goods can be a specific goods, that is an existing goods, or a future goods. So in the case of a contract of sale, what is the most important element is a goods. Now today's topic of study is a price and mode of fixation of the price. I told you that one of the important element in the case of a contract of sale is a price.
that is the money consideration. Now, how the price will be fixed, we are going to study in today's lecture. On your screen, you can refer that what they have given. Price and the modes of fixing the price or fixation of the price. The price means the monetary consideration for the sale of goods. Section 2(10). Price may be fixed in any of the following modes provided in section 9. Now, how the price will be fixed, that has been provided under section 9. Section 9(1) says that fixation of the price by the contract of sale. Contract of sale में price fix किया जाएगा. That means when the buyer and seller will enter into any kind of a contract, that is a contract for sale, the price will be fixed in the contract. उस contract में price fix की जाएंगी कि इतना amount seller is bound to collect from the buyer और buyer is bound to pay to the seller. कोई particular product का price will be fixed under the contract. The contract can be oral or contract can be in writing. तो however अगर suppose आप कोई particular दुकानदार के पास जाते हो तो orally आप उससे तोल मोल करते हो, आप बार्गेनिंग करते हो एंड द प्राइस इज फिक्स्ड. दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. दो पार्टीज के बीच में, बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस डिसाइड होगा. तो व्हाट इट सेज, द प्राइस में बी एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. द पार्टीज में फिक्स एनी प्राइस दे लाइक. बार्गेन करके या वॉट एवर दे फील, accordingly they will fix the price of that particular goods, subject matter of the contract. Second one, fixation of the price in a manner provided in the contract of sale. The contract of sale may provide for some manner in which the price is to be fixed. In such a case, the price may be fixed in any manner provided in the contract. What it says, the contract of sale may provide some manner in which the price is to be fixed. Some manner. That means in the case of a contract, there will be certain flow chart, there will be certain definitions, there will be certain manner, there will be a procedure defined in the case of a contract. कुछ तरीका डिफाइन किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर इस तरीके से काम हुआ तो इतना आपको प्राइस देना पड़ेगा. तो दे आर गोइंग टू फिक्स द प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन ऑफ द प्राइस कि अगर इस तरीके का एक्स टाइप का काम करते हो तो प्राइस विल बी 1 लाख, अगर वाई टाइप का काम करते हो तो प्राइस विल बी 1,50,000 एंड अकॉर्डिंगली द पार्टीज विल डिसाइड कि कौन से टाइप का काम करवाना है या कौन से टाइप के गुड्स आपको परचेस करना है. तो दैट इज दे आर सेइंग दैट इन सम मैनर द प्राइस विल बी फिक्स्ड. तो इट विल बी डिसाइडेड मैनर वाइज, इट विल बी डिसाइडेड प्रोसीजर वाइज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा कि ये पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ गुड्स है तो प्राइस इतना रहेगा. इतने क्वांटिटीज अगर आप परचेस करते हो तो प्राइस विल बी 10% डिस्काउंट विल बी गिवन एंड सो ऑन. तो अकॉर्डिंगली द मैनर विल बी डिसाइडेड, मैनर विल बी फिक्स्ड इन द केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. तो पहला क्या बोल रहा है, सेक्शन 9(1) और दोनों में क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली प्राइस लिखी जाएंगी कि इतना प्राइस बायर सेलर को पे करेगा. या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैनर विल बी डिफाइंड, द टाइप विल बी डिफाइंड कि हाउ द प्राइस विल बी पेड बाय द बायर टू द सेलर. फर्दर व्हाट इट सेज, द फिक्सेशन ऑफ द प्राइस बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग. कोर्स ऑफ डीलिंग के मीनिंग क्या है कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मैं मार्केट में एक पर्टिकुलर गुड्स 100 रुपीज के रेट से बेच रहा हूँ, लेकिन आपके साथ मेरा जूना संबंध है, आपके साथ मेरे ओल्ड डीलिंग्स है, यू आर रेगुलरली परचेजर, आप मेरे ओल्ड कस्टमर्स हो. तो उसमें अकॉर्डिंगली मैं आपको प्राइस विल नॉट बी 100, प्राइस विल बी समवॉट 10% लेस और 15% लेस. तो अकॉर्डिंगली इट विल बी अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द बायर एंड द सेलर. व्हाट इट सेज, sometimes the customs or the usage of trade provides certain principles for determination of the price. In such a case, the price may be determined from the course of dealing between the parties. दो parties के dealing के, though the market rate of certain goods will be different, however, because you are my old customer, there is a old dealing between the seller and the buyer.
the price for this particular customer may be different. अपन बोलते हैं ना डीलर प्राइस पे 10% I am going to give you the discount. So this is how the price will be fixed between the buyer and the seller. The first mode of fixation of price is there is a straight price written in the contract. Second one is the manner will be defined in the case of a contract. Accordingly price will be fixed के अगर 1 to 100 quantity purchase करते हैं तो 100 rupees price, 100 के ऊपर अगर आप quantity purchase करोगे तो I am going to give you 10% discount. This is how the manner will be defined in the case of a contract. Second part of this particular topic. Third one is it will be decided on the basis of course of dealing between the buyer and the seller. Buyer और seller के बीच में डिसाइड, जैसे कि समटाइम यू गो टू अ सप्लायर एंड आस्क फॉर द गुड्स और वो आपको एक प्राइस बोलता है, आप उसको बोलते हैं साहब कोई डिस्काउंट होगा क्या, तो वो बोलता है आप काम तो चालू करो आगे देखेंगे कि डिस्काउंट आपको देना है या नहीं देना है. दैट मीन्स ही इज गोइंग टू फिक्स द प्राइस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका उसके साथ डीलिंग किस तरीके से होता है, कि आप पेमेंट अगर बराबर देते हो, कैश पेमेंट देते हो, चेक इमीडिएटली आपका क्लियर होता है, तो अकॉर्डिंगली द प्राइस विल बी फिक्स इन द केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. फोर्थ वन क्या बोल रहा है, द फिक्सेशन ऑफ ए रीजनेबल प्राइस सेक्शन 9(2). रीजनेबल प्राइस का मीनिंग क्या है कि अगर आप सपोज कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन प्राइस फिक्स नहीं हुई है, या बायर ने सेलर के यहाँ से कोई गुड्स लेके गया है लेकिन प्राइस डिसाइड नहीं हुई, या सेलर ने बायर को कोई गुड्स भेज दिए लेकिन प्राइस बोलना भूल गया या प्राइस मेंशन नहीं किया है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस केस में वो बोल रहा है कि बायर को रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा. और रीजनेबल प्राइस विल बी जनरली डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन. दैट मीन्स मार्केट के अंदर जो जनरल प्राइस चालू है वो प्राइस विल बी पेड बाय द बायर टू द सेलर. व्हाट इट सेज, sometimes none of the above principle is applicable. In such a case the buyer shall pay the seller a reasonable price. The term reasonable price is a question of fact which depend upon the circumstances of each particular case. तो वो डिपेंडिंग रहेगा कि circumstances कैसे, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड होगा. आप बाज वक्त देखते हो कि कोई फॉर एग्जाम्पल आई एम अ शॉपकीपर, मैं एक स्टेशनरी का दुकान लेके बैठा हूँ और आप मेरे दुकान पे आते हो और एक यू वांट 1 dozen बुक्स, आपको एक नोटबुक चाहिए, 1 dozen बुक्स चाहिए, आप मेरे पास आते हो, दुकान पे काफी गर्दी है, आप आते हो और आप बोलते हो कि आप मेरे पहचान वाले हो और आप बोलते हो कि सर ये रजिस्टर चाहिए 1 डजन 1 क्वायर का, तो ऐसे कि वो वहाँ है और आप निकाल के लेके जाओ. आप खुद ही निकालते हो लेके जाते हो लेकिन प्राइस आप मुझे देते नहीं हो. प्राइस देते नहीं हुए इन द सेंस आप प्राइस फ्यूचर में देने वाले हो, आगे देने वाले हो. तो इस केस में यू हैव टेकन द गुड्स, आई हैव सप्लाइड द गुड्स बट प्राइस इज नॉट फिक्स. तो ये सर्कमस्टेंसेज में आप कितना पेमेंट दोगे, तो यू आर गोइंग टू पे मी द रीजनेबल प्राइस. और रीजनेबल क्या, वो 1 एकड़ रजिस्टर का जो जनरली मार्केट रेट है उस हिसाब से आप मुझे रीजनेबल प्राइस फिक्स करोगे. तो दिस इज हाउ द प्राइस. तो फर्स्ट क्या बोला है कि प्राइस विल बी फिक्स by the contract of sale. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेट अवे प्राइस लिखा हुआ है, that has to be paid. Second one is there will be certain manner defined in the case of a contract कि इस हिसाब से बायर को सेलर को पेमेंट देना है. तीसरा क्या बोल रहा है कि कोर्स ऑफ डीलिंग से प्राइस विल बी फिक्स बिटवीन द बायर एंड द सेलर. फोर्थ क्या बोल रहा है कि अगर प्राइस डिसाइड नहीं है तो रीजनेबल प्राइस हैज टू बी पेड बाय द बायर टू द सेलर. फिफ्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिफ्थ केस में क्या बोल रहा है, द फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय द थर्ड पार्टी. कुछ केसेस में प्राइस विल बी फिक्स बाय द थर्ड पार्टी. दिस इज जनरली अ केस ऑफ ए वैल्यूअर. वैल्यूअर विल बी फिक्स के आप सपोज आप एक गोल्ड आपके पास रिंग है या फिर आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है और आपको वो सेल आउट करना है, तो आप सामने वाले शॉपकीपर के पास जाते हो. तो नाइदर ही इज एक्सपर्ट नाइदर यू आर एक्सपर्ट टू फिक्स द प्राइस ऑफ दैट गोल्ड ज्वेलरी. तो आप इस गोल्ड ज्वेलरी को लेके जाते हो वैल्यूअर के पास, गोल्ड स्मिथ के पास, और आप उसको बोलते हो कि इसका वैल्यू करके दीजिए एंड अकॉर्डिंगली द प्राइस विल बी डिसाइडेड एंड विल बी पेड बाय द बायर, विल बी पेड बाय द person who is purchasing that is a buyer to the seller. So this is called as price will be fixed by the third party. Simple example कि एक चीज है, मुझे आपको बेचना है, आपको मेरे से खरीदना है, लेकिन ना आप उसमें एक्सपर्टाइज हो प्राइस फिक्स करने के लिए, ना मैं एक्सपर्टाइज हूँ. तो here we will appoint a third party
थर्ड पार्टी उस प्राइस को फिक्स करेगा एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी पेड बाय द बायर टू द सेलर. दिस इज कॉल्ड एज अ फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय अ थर्ड पार्टी. व्हाट इट सेज, the parties may agree to sell and buy goods on the terms that the price shall be fixed by the valuation of the third party. However, if such third party fails to make the valuation, the contract becomes void. But if the buyer has received the goods and appropriated them, he becomes bound to pay a reasonable price to the seller. Sometimes what happens, I have given you the goods, you have taken the goods with my consent, और इट हैज बीन डिसाइडेड दैट कि इसका प्राइस जो मिस्टर एक्स डिसाइड करेगा दैट प्राइस विल बी पेड बाय यू टू मी. जैसे कि जनरली होता है कि एक पर्टिकुलर फ्लैट मेरा मोहाड़ी रोड पे है और वो वेकेंट पड़ा हुआ है और आप फ्लैट ढूंढ रहे हो, तो मैंने आपको बोला कि वो मेरा फ्लैट खाली है, आप उसको ले लो और जो पैसा होगा विल सी टू इट. तो यू हैव टेकन द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट बट द प्राइस इज नॉट फिक्स. Now in these circumstances you have taken the possession of the goods, I have transferred the ownership but the price is not fixed. In these circumstances it has been said that के price कौन decide करेगा, तो will say that कि you should pay a reasonable price. तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि sometime what happens कि मैं आपको goods दे देता हूँ, आप मेरे से goods ले लेते हो, प्राइस की बात हुई नहीं है, प्राइस ऐसा डिसाइड हुआ है कि प्राइस जो भी सामने वाला थर्ड पार्टी बोलेगा वो थर्ड पार्टी के हिसाब से आपने मुझे पे कर देना और मैं आपसे इतना पेमेंट ले लूंगा. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ अस इफ द प्राइस इज डिसाइडेड बाय द थर्ड पार्टी. यू हैव टेकन द गुड्स और आपने वो गुड्स को यूज कर लिए, प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है. अब हुआ क्या कि ऐसा डिसाइड हुआ है, सपोज यू आर एक्स एंड आई एम वाई, और अपने बीच में डिसाइड हुआ है कि मिस्टर अमित जो प्राइस डिसाइड करेगा दैट प्राइस हैज टू बी पेड बाय यू टू मी. आई हैव सोल्ड द गुड्स टू यू, प्राइस हैज टू बी फिक्स्ड बाय मिस्टर अमित. दोज गुड्स हैव बीन यूज्ड बाय यू. एप्रोप्रिएटेड बाय यू का मीनिंग क्या है, आपने उस गुड्स को यूज कर लिया, वो गुड्स जिसका प्राइस अभी तक फिक्स नहीं हुआ है. और प्राइस कौन फिक्स करने वाला है, प्राइस फिक्स करने वाला है थर्ड पार्टी. तो अब इस सर्कमस्टेंसेस में क्या डिसाइड हुआ था कि मिस्टर अमित जो प्राइस बोलेगा वो प्राइस आप मुझे दोगे. अब वी बोथ गोज टू अमित, अमित को बोलते हैं कि ये गुड्स थे जो मैंने मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को दिए थे, आप उसका प्राइस बताइए कितना होना चाहिए. वहां पे मिस्टर अमित बोलता है कि नहीं, इसका तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, मैं इसका प्राइस बता नहीं सकता. तो अब इस सर्कमस्टेंसेस में क्या बोल रहा है कि अगर थर्ड पार्टी ऐसा डिसाइड हुआ है कि थर्ड पार्टी कोई गुड्स का प्राइस डिसाइड करेगा एंड दैट हैज टू बी पेड बाय द बायर टू द सेलर, और अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे फेल हो जाता है, थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं कर पाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड. वेरी फाइन कि मैंने आपको गुड्स दिए, प्राइस थर्ड पार्टी फिक्स करने वाला है, थर्ड पार्टी फिक्स नहीं कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, आपको मेरे गुड्स वापस करने पड़ेंगे. लेकिन अब इस सर्कमस्टेंसेस में क्या हुआ है कि गुड्स तो आपने यूज कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट वो बोल रहा है कि अगर थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा टर्मिनेट, तो आपको मेरे गुड्स रिस्टोर करके देने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइस थर्ड पार्टी फेल हो गया है फिक्स करने के लिए. मगर अब इस सर्कमस्टेंसेस में आपने गुड्स तो अप्रोप्रिएट कर लिए, गुड्स तो आपने यूज कर लिया, अब आप मुझे रिटर्न कैसा दोगे, तो वो बोल रहा है इस सर्कमस्टेंसेस में बायर इज बाउंड टू पे द रीजनेबल प्राइस. अगेन नाउ व्हाट इज द रीजनेबल प्राइस, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट रेट. मार्केट में जो जनरल प्राइस होगा उस गुड्स का, वो गुड्स का प्राइस आपको मुझे देना पड़ेगा. आगे क्या बोल रहा है, समटाइम द थर्ड पार्टी इज इन्फ्लुएंस और प्रिवेंटेड बाय द बायर और द सेलर, बाय द बायर और द सेलर from fixing the price. In such a case, the innocent party may recover the damages from the defaulting party. अब हो क्या रहा है, बायर और सेलर के बीच में, आपके और मेरे बीच में डिसाइड हुआ है कि थर्ड पार्टी जो प्राइस फिक्स करेगा that price has to be paid by you to me. ये कब हो रहा है, सपोज आप और मैं एक दोस्त थे और ऐसा डिसाइड हुआ है कि गुड्स आप लेके जाओ और प्राइस अपना जो थर्ड फ्रेंड है वो जो बोलेगा वो प्राइस आपको मुझे देना है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड फ्रेंड है, यू आर अमित
आई एम मुर्तजा एंड ही इज कौशल। अमित और मुर्तजा के बीच में ऐसा डिसाइड हुआ है कि जो प्राइस कौशल बोलेगा वो प्राइस अमित मुर्तजा को दे देगा और मुर्तजा इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट प्राइस फ्रॉम द अमित। उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कौशल जो बोलेगा वो प्राइस दोनों के बीच में डिसाइड होगा और वो दोनों का एक्सेप्टेबल रहेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कौशल जो भी डिसीजन लेगा वो अमित के फेवर में लेगा, यानी वो प्राइस उस गुड्स की कम बोलेगा। तो मैंने क्या किया, कौशल का ही किडनैप करवा लिया। कौशल को ही मैं प्रिवेंट कर रहा हूं कि वो प्राइस फिक्स नहीं कर पाए, क्योंकि अगर कौशल वो प्राइस फिक्स नहीं कर पाया तो मैं अपने गुड्स या तो वापस ले लूंगा या तो फिर आपको उस गुड्स का रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। अपन पॉइंट नंबर 3 में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट कि if the third party could not fix the price, the contract will become void, or otherwise if the goods have been appropriated by the buyer, a reasonable price has to be paid by the buyer to the seller। तो मैं कौशल को प्रिवेंट कर रहा हूँ। कौशल मैं देख रहा हूँ कि कौशल उस गुड्स का प्राइस ना बोले, क्योंकि मेरा इंटेंशन ऐसा है कि कौशल ने अगर प्राइस फिक्स कर दिया तो मुझे पैसा कम मिलेगा, तो मैं कौशल को उस गुड्स की प्राइस फिक्स करने नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको प्रिवेंट कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। मैं किसी उसको किडनैप करवा लिया या उसको कोई भी तरीके से मैं उसको रोक रहा हूं कि वो प्राइस फिक्स ना कर पाए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैं ऐसे हटकंडे अपनाता हूँ, ऐसा प्रोसीजर अपनाता हूँ, तो इनोसेंट पार्टी, अब इस केस में अमित इज अ इनोसेंट पार्टी, उसके साथ उसको पता ही नहीं है कि ये सब हो रहा है, तो ही विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी। और यहाँ पे डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है, मैं हूं। मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं कि वो प्राइस फिक्स नहीं कर पाए, तो हियर अमित विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम मुर्तजा। व्हाट इट सेज, एग्जांपल, A agrees to sell his 100 bags of rice to B at a price to be fixed by C। A ने B को 100 bags राइस के सेल करना है, प्राइस थर्ड पार्टी ने फिक्स करना है और थर्ड पार्टी को है C। But C failed to fix the price. In this case, the agreement becomes void on C's failure to fix the price। तो क्या बोल रहा है कि अगर थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं कर पा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा void, और अगर बायर ने वो गुड्स ऑलरेडी लेके गया है तो उसको वो गुड्स रिटर्न देने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, टर्मिनेट। सेकेंड एग्जाम्पल, A agreed to sell his 100 quintals of wheat to B at a price to be fixed by C. C is willing to value the wheat and fix the price, but A by his wrongful act prevents C from making the valuation of goods. In this case, B can claim damages from A। Similar example to Amit, Murtaza and Kaushal, जहाँ पे मुर्तजा कौशल को प्राइस फिक्स करने नहीं दे रहा है, तो Amit will be entitled to recover the damages from Murtaza, who is a defaulting party। Third is, P is having 2 bikes. He agreed to sell both the bikes to S at a price to be fixed by Q. He gives delivery of one bike immediately. Q refuses to fix the price. As such, P asks S to return the bike already delivered, while S claims for the delivery of the second bikes too. In the given instance, buyer S shall pay a reasonable price to P for the bike already taken. As regards second bike, the contract can be avoided। Simple example they are given। I have 2 bikes। वो 2 बाइक मैं आपको सेल करने का वादा करता हूँ, उसमें से एक बाइक की डिलीवरी आपको दे देता हूँ, लेकिन क्या डिसाइड होता है कि प्राइस विल बी फिक्स बाय द थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी बोलेगा, दैट पर्टिकुलर अमाउंट हैज टू बी पेड बाय बायर टू द सेलर। उस 2 बाइक में से एक बाइक की डिलीवरी ऑलरेडी दे चुका हूँ, एक बाइक मैंने अभी आपको दिया नहीं है, प्राइस थर्ड पार्टी फिक्स करने वाला है, वो पैसा आपको मुझे देना है। थर्ड पार्टी के पास आप और मैं अप्रोच करते हैं, उसको प्राइस फिक्स करने के लिए बोलते हैं, वो रिफ्यूज कर देता है। अब इस सर्कमस्टेंसेस में आउटकम क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है कि जो एक बाइक ऑलरेडी डिलीवर कर दी, वो बाइक अगर आपने यूज करना चालू कर दिया तो आप उस बाइक का रीजनेबल प्राइस मुझे पे करोगे, और अगर आपने यूज करना नहीं चालू किया तो आप वो बाइक मुझे रिटर्न दे दोगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, टर्मिनेटेड। लेकिन अगर आपने वो बाइक को यूज करना चालू कर दिया तो आप उस बाइक का रीजनेबल प्राइस जो मार्केट में अवेलेबल है वो प्राइस आप मुझे पे करोगे,
और जो सेकेंड बाइक जिसका डिलीवरी मैंने आपको नहीं दिया है, वो contract related to second bike will become terminated, will become discharged and void. So this is how the price will be decided in the case of price fixation by the third party. So this is all about mode of fixing the price or mode of fixation of the price by the third party or by way of contract of sale. तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेट अवे डिसाइडेड है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और कैन बी इन राइटिंग, द प्राइस कैन बी फिक्स सिंपली डिसाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट प्राइस हैज टू बी पेड फ्रॉम द बाय द बायर टू द सेलर. सेकेंड वन क्या बोल रहा है, देयर मे बी सर्टेन प्रोसीजर, देयर मे बी सर्टेन मैनर रिटर्न इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड अकॉर्डिंगली द प्राइस विल बी डिसाइडेड. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल कि इफ 1 to 100 quantity is purchased, the rate will be rupees 100 per piece. If the quantity is more than 100, 10% discount will be given by the seller to the buyer. This is how the price will be fixed. थर्ड केस में बोला है कि प्राइस फिक्स नहीं हुआ है और बायर ने वो गुड्स ऑलरेडी सेलर से लेके गया है लेकिन प्राइस फिक्स नहीं हुआ है, तो बायर विल हैव टू पे द रीजनेबल प्राइस टू द सेलर और फिर कोर्स ऑफ डीलिंग से प्राइस डिसाइड हो सकता है. तो दिस इज ऑल व्हाट दैट हैज बीन कवर्ड अंडर द फिक्सिंग ऑफ द प्राइस. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. बाय एवरीवन.